ਇਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਕਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਇਹ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਕਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਆਓ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਮਬੂਦ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਲਵੋ ਕਿ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। भाई इमरान कालू साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ کہ جی انہوں نے غلط کیا۔ تفصیل اس اجمال کی کیا ہے؟ اس کی تفصیل اب یہ ہے کہ بات چیت ہو رہی تھی اوپن آئیز کی براڈ کے اوپر، ٹھیک ہے جی، اور میں نے جا کے اوپر ان سے یہ بات کی ہے کہ بھائی اگر تو آپ کے بندے نے دلیل لینی تھی تو بڑے رام سکون کے ساتھ جاتا اور جا کے دلیل لے لیتا، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اپنے ساتھ راڈ لے کے گیا ہے اور منہ کے اوپر ماسک چڑھا کے گیا ہے، فرنٹ کے اوپر اس نے اپنے ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے، تو پھر اس کو دلیل ایسے نہیں لی جاتی، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی زبردستی کوئی چیز وہ لینے گیا، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں ایسے نہیں ایسے۔ میں نے کہا دیکھیں دلیل جو سی ہے نا، ہمارے اے ڈی والے گروپ والے جو لوگ تھے نا وہ بھی آپ لوگوں کو حوالے دینے گئے تھے اور وہ بڑے آرام سے گئے ہیں بنا کسی چیز کے، اور جا کے اے ڈی والوں نے گروپ والوں نے جا کے تو وہاں پہ حوالے دے دیے آپ لوگوں کو۔ میں نے کہا ایسے ہی بات ہے کہ میں نے ہاتھ میں کوئی ہتھیار پکڑا اور میں آپ لوگوں کے سینٹر میں چلا جاؤں اور کہوں کہ بھائی مینوں حوالہ دو، تو وہ مینوں حوالہ نہیں دیں گے، وہ مینوں چھتر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں نے غلط کیا ہے۔ جوئی صاحب بھی اچھلن ڈے سن، ٹھیک ہے، وہ بعد علی اکبر صاحب بھی اچھلن ڈے سن، اور بھی بندے دو تین تھلوں آئے نے، طاہر صاحب سن، نوید طاہر صاحب وہ بھی آ کے اچھلن ڈے، ہر بندہ آ کے اچھلیا ہوئے کہ بھائی جی اے تساں کہڑے بندے نو کہتے جی گل کرنے واسطے۔ میری بات سنیں، آپ لوگوں سے غلطی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگ یہ کہتے نا کہ ہمیں صرف حوالہ چاہیے تو بڑے پیار سے جاتے اور جا کے وہاں پر یوسفی صاحب موجود تھے، راجہ صاحب موجود تھے، آرام سے ان سے لے لیتے۔ میں نے کہا دوسری بات ہے اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے راڈ نہیں دکھایا تو آئے ہیں امر نذیر بھائی کے بورڈ کے اوپر، آپ کو ویڈیو دیتے ہیں جس میں راڈ بڑے واضح طور کے اوپر اس کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا اگر آپ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے آپ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، تو میں نے کہا جی جب وہ مسجد کے اندر گیا ہے تو انہوں نے بیٹھنے کے لیے بڑے واضح طور پہ کہا، لیکن اس بندے کے پاس راڈ تھا، وہ کیسے بیٹھتا نیچے؟ اپنے ہی پیٹ کے اندر اس کے راڈ چلے گیا تھا۔ بڑی سادہ سمپل سی بات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عمران کالو صاحب آئے، عمران کالو صاحب کہتے ہیں، عمران کالو صاحب بڑے جلدی جلدی اوپر آئے ہیں اور کہنا شروع ہو گیا چلے ہوئے۔ تو عمران کالو صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے مجھے مرتد بول دیا، کیونکہ بہت سارے قادیانی بھائی یہ اکثر کہہ دیتے ہیں جی ہمارا کوئی بھی احمدی بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مرتد ہے۔ تو عمران کالو صاحب نے آتے سارے میرے لیے مرتد کے الفاظ استعمال کیے اور بڑا برا بلا سے کہنا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا عمران کالو صاحب پہلے تو آپ اس بات کو مانیں کہ آپ کا جو بندہ ہے اس نے غلطی کی ہے، اور اس نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ اس کا طریقہ کار بالکل غلط تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سے جو بات ہے حضرت عیسیٰ کی حیات یا وفات کا وہ تو بعد میں آپ سے کر لیتے ہیں، پہلے اس بات کو مان لیں۔ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی میں اس بات کو مان لیتا ہوں کہ ہمارا جو بندہ ہے اس نے اس بات کی غلطی کی ہے۔ یہاں تک بات ہوئی، اس کے بعد میں نے جزاک اللہ کہہ کر میوٹ لگا لیا۔ وہاں پر دوسرے جو بیٹھے تھے ان میں سے کوئی نہیں کسی نے کہا کہ نہیں ہم تو اس پہ بڑا فخر کر رہے ہیں کہ یہ تو اس نے ہمارا شیر نے جویا صاحب نے عمران کالو صاحب کی بات کی تائید کی ہے اور انہوں نے عمران کالو صاحب کی بات کو سیکنڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی اس میں عمران کالو صاحب کی بات پہ بالکل نہیں بولا، کیونکہ ان کے الفاظ وہ صاحب نے اسی بات پہ شاید پوچھتے کہ عمران کالو صاحب نے مجھے مرتد بول دیا، لیکن یہ بھی انہوں نے جو بولا میں کہتا ہوں بہت اچھے الفاظ تھے، وہ میرے لیے اچھے تھے، کیونکہ میں کل کو 20 لوگوں کو یہ بات دکھانے والا ہوں گا کہ بھائی یہ ہیں آپ لوگوں کے احمدی جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو مرتد کہتے ہیں۔ اب وہ نیچے 1122 کہہ رہا ہے کہ ذیشان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کو اوپر لے لیں، انہیں کی ریکارڈنگ دکھا دیں۔
ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਬਰਾੜ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਵੇ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਲੱਤ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਫੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਫਟੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਧੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ रिकॉर्डिंग की है, हाल भी रिकॉर्डिंग चल रही है पीयूष बराड़ जी। अबू बकर मीर भाई कि जिस तरह का उन्होंने सलूक किया है ना, अखीर थी उन लोगों की बात करता हूँ। ਮੀਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ? ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਲੀਰੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਇੰਡ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਆਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਚੜਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਰਵੱਈਆ ਆਮਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਰਵੱਈਆ। ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੇ ਲੱਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਬਲੇ ਅਫਸੋਸ भी है। ਤੇ ਬਾਕੀ ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ है, जो मर्जी करन, ਸਾਨੂੰ कोई मसला नहीं। मेरे लिए ना इमरान कालू साहब के जो अल्फाज थे ना, वो जो उन्होंने इमरान कालू से पहले किया वो तो जो उन्होंने किया, लेकिन बात ऐसी थी मैंने अपनी बात भी वहाँ पर जोन सी है ना वो अच्छे से रखी। उन लोगों को ये गुस्सा आ रहा था कि इस बंदे को इतनी देर ऊपर बिठा के क्यों रखा हुआ है, इसको नीचे फेंके। अब उनको इस बात का बड़े अच्छे से था कि आज नीचे फेंकते तो कल तो मैंने कहीं कांड हाटी को खड़ा कर लेना था कटहरे के अंदर। ठीक है, बात ये वाली है कि जो कालू साहब के जो अल्फाज थे ना मुर्तद वाले, आप यकीन करें कि वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव अल्फाज थे। वजह ये वाली है कि कुछ चीज़ें बाज़ का मुँह से निकलवानी पड़ती हैं, ठीक है, और उनका जो इकरार होता है ना वो किसी दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होता है। चले मेरे लिए तो जो उन्होंने इस्तेमाल किए बहुत सारे कादियानियों के लिए ये कालू साहब के जो अल्फाज हैं ना वो बहुत मैटर करते हैं क्योंकि वो इनको सुनते हैं। तो इसलिए बड़ा अच्छा मुझे लगा कि ठीक है आप भाइयों को तो गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि वो उनकी बातचीत का अंदाज ऐसा, लेकिन मेरे लिए बड़ी पॉजिटिव, तभी मैं ऊपर बैठा हुआ था बड़े आराम सुकून के साथ। ਮੀਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਭੌਂਕ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈਗਾ। हाँ थले मेरी आंटी दानी दे भी कमेंट पढ़ लो ना। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਲਸਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗਿੱਲੀ ਗੱਲ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਗਿੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਢਿੱਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਟੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਮੇਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਮੇਰਾ ਹਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਅਗਰ ਉਹ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਪਦੈਸ਼ੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਗਰ
ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਤਰਫਾ ਗੇਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁੱਖੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ, ਇੱਕੋ ਪਾਸਾ ਰੱਖ ਲੈ ਹੀਰੇ ਜਾਂ ਖੇੜੇ ਜਾਂ ਰਾਂਝੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਂਝੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਟਰਲ ਬਰਾਡ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ ਬਰਾਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਬਰਾਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਫ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਡ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜੀ। ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। राणा राशिद साहब ने कल वाले मामले की बड़ी मजम्मत की थी है। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੋਗਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋਗਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਅਲੀ ਹੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੰਝ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅਹੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। सीकर तक को बहुत ही बेईमान बंदा है यार, को बहुत बेईमान है प्याना। इतना बेईमान बंदा मैं जिंदगी देखे ही नहीं। ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੱਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖੈਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਤ ਸੀਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰਤ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਤਰੇ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਸ਼ਦ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਰਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੈਫੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨੇ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਮ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਆਮਰ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਕੁੱਤਾ ਖੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਏਦਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓ ਯਾਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੇ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਕੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਫਰਕ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੀਰ ਭਾਈ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੂੰ, ਕਈ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਮੂੰ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਹਤਰਮ ਹਸਤੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਚਲੋ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਬਈ ਨਾਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਮਬੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾ ਇਹ ਲਾਓ, ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ, ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ। ਇਹ ਜੇ ਨਾਰਾ
ਭਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪੀਰ ਪੀਰੀ ਭਾਬੀਆਂ ਤੋਂ। दुनिया में एक नजीर आया लेकिन आसा बना। दुनिया ने पहचाना नहीं। ਇਹ ਲਾਮ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਨਾ। ਅਸਾਂ ਭਾਬੀਆਂ ਪੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ ਫਿਰ। नहीं मिर्जा साहब का लाम पूरा नहीं हो गया। इल्हाम ही कोई नहीं पूरा होया। बड़े बड़े लोगों ने पहचान लिया है जड़ा दुनिया ते एक ही आया ना तुसा को नजीर। उस ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਉਸ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕੀ ਵਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਨਜ਼ੀਰ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ। ਨਹੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮੁਤਬਰ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਓਏ ਠਹਿਰੋ 44 ਸਬਰ ਕਰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਓਏ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆ ਕਰ। ਓਏ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆ ਕਰ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ और मिर्ज़ा कादियानी दी किताब दे अंदर एक पैगाम लिखिया वे कि दुनिया में एक नज़ीर आया ते लोकां नूं पछाणिया कोई नहीं। असीं ओहदी वे गल करनी आ कि मिर्ज़ा कादियानी ने जिहड़े नज़ीर दा नाम लिया है ना वो नज़ीर आया बैठे आ सामने तेनू पछाणो। मिर्ज़ा कादियानी दी किताबां गंद ने ओ गंदे ने ठीक है ते अमर भाई साफ ने किथे के नहीं यार ओहदियां किताबां दे विच कोई गल सही भी ते लिखी होवेगी ना ते गल सही लिखी है। ओलिया अल्लाह दा लिखिया है कुरान हदीस विच ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਅਮਰ ਭਾਈ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਧਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ में एक ਨਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਅਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੜ ਫਸ ਨਾ ਕਰੇ ਕਰ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰੂ ਮੁਸਲਮ ਆ ਗਿਆ। छोटा जा ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ थल्ले एक बड़ा खूबसूरत मैसेज आया आवे कि आमर है नज़ीर इसके प्यो का नाम था। अच्छा ये कहानी जी है मिर्ज़ा कादियानी भी फिट कर सकते हो अपना दानी ही या शी पता नहीं की है। मिर्ज़ा कादियानी के प्यो वाल भी फिट कर सकते हो जड़ा मजूने मुरक्कब है पता नहीं नस्ल की सी ते आंदा सी कि मैं सदात चों हाँ ते ओदा प्यो ते मुगल बरलास नहीं सी वाला ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ किवें सदात चों ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? अहमद किस तरह बनया है ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰਮ ਬੇ ਰਸੂਲ ਯਾਤੀ ਮਿਨ ਬਾਦੀ ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਮਿਸਦਾਕ किस तरह बन गया है? अस्कानी साहब ऊपर आकर बुखारात निकाल लें, नीचे ना खाम खा मैसेज के टैक्स मजदूरी ना करें। सारे बंदे आपके मुंतज़िर हैं। अगर आप ऊपर आकर बुखारात निकालना चाहते हो तो आपको इनवाइट किया गया है। खाम खा नीचे ना मैसेज करें। फजूल क्यों अपनी उंगलियों को ना मेरे भाई पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू को पे उठाओ साथ में। आज आप परेशान तो होंगे क्योंकि सारे मुसलमानों की खुशी का दिन है, सबको सोएब राजा पर फख्र है, तो आप परेशान तो होंगे। लेकिन हमारे चले बेटे वो हैं, किसी को कहिए कि कोई सेक्स फिल्म ही चला दे, क्या ख्याल है? बात तो हो नहीं सकती आपसे क्योंकि आपके चेले इधर बैठे हुए हैं, उन्होंने बैत किया है आपके हाथ पे मोहतरम। मैंने कल आपको ये कहा था कि आपने $10,000 देने का वादा किया, इतनी बड़ी भड़क मारी आपने और उससे फिर मुकर गए। बाद में आपको याद आया करे ये शर्त भी लगाना चाहिए, वो भी शर्त लगाना चाहिए। अच्छा बिचो ना पीर अस्कानी साहब का भी दिल करता है कि इस ब्राड पे आए। एक मिनट भाई, एक मिनट हजरत जी, ये कहता हूँ कि इतने आपके शागिर्दों के साथ गुफ्तगू तो नहीं हो सकती क्योंकि आप एक हिसार में हैं, अंदर आप बैठे हुए हैं बहुत बड़ा चौधरी बन के, लुंगी बांधा हुआ है, हुक्का आपके मुंह में है और साथ आप हिसार के अंदर हैं। तो वो मैं कल देख रहा था वैसे आमिर नज़ीर साहब
ऐसे ही जा रहा था तो वो है एक बिहार का लालू 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 अच्छा नाम है, तो उन्होंने कहा कि भाई लालू प्रसाद, किसी ने पूछ लिया कि लालू जी आप क्या डरते नहीं, ऐसे कुला डुला बातें करते हैं। उसने कहा मैं क्यों डरूं, मैं होता हूं जमगटे के हिसार में, बीच में होता हूं, आगे पीछे मेरे जो है वो हिसार है लोगों की, अगर कोई गोली चला देगा उनको लग जाएगी। तो आपका ये मामला है, आपसे बात करना तो बहुत मुश्किल है मोहतरम। मैंने सिर्फ आपसे ये अर्ज़ किया था कि आपने जो इतनी भड़क मारी कि $10,000 दूंगा, बाद में जब आपके पास आप ही का एलची आया जिसको आपने ही कबूल किया था एक तरफा, तो एलची ने कहा कि भाई वो तो मान गए हैं, आप पैसा दे दीजिए। आपने कहा ना 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 ना, ऐसे कैसे हो सकता है, पहले गारंटी लाओ। तो मैंने ये आपसे सुना था और बारहा ये आप अपने शागिर्दों को कहते हैं कि जंग के बाद अगर मुक्का याद आ जाए तो कहाँ मारना चाहिए, अपने मुंह पे। बात ये आपकी सच है, दुरुस्त है। कल मैंने कहा था आप तो हैं बड़े चौधरी, खुद साख्ता, तो अब आप ऐसा करें, वो आप तो अपने आप को नहीं मार सकते, चौधरी जो रहे, और आप अपने चेलों को भी नहीं मारेंगे क्योंकि उनके हिसार में ही आपने चलना है। तन्हा आपका मुकाबला करने की कभी ना जुर्रत थी ना है। अब मैंने ये कहा कि आपको मुहतरम वो मेरे मुंह पे मार दीजिए, वो भी आप नहीं कर पाए, तो ज़रा बताइए, इसका जवाब दे दीजिए मोहतरम। अच्छा, पहली तो बात ये है कि ये जो लफ्ज़ आप चेले मुरीद और इस तरह की गालियां देते हैं ना हमारे भाइयों को, ये मेहरबानी है आपकी कि दोबारा ना दें। ये हमारे भाई हैं और हमारे दस्तो बाजू हैं। किसी ज़माने में यही बात हमने अमित अग्रवाल को कही थी, जिस पर आपको फ़ख्र हुआ था, और अमित अग्रवाल बड़ा तड़पा था कि ये कहता है कि इंजीनियर और वकील कमर सुल्तान मघियाना ये हमारे बाजू हैं, भाई बाजू होते हैं। हमने आपको बताया था, लेकिन आप गाली देने के लिए इस तरह के तौहीन आमेज़ अल्फाज मेहरबानी करके ना इस्तेमाल करें, वरना कोई इरिटेट होकर जवाब दे, फिर आपको बुरा लगेगा। दूसरी बात यह है कि झमगट्टे वाली और लालू प्रसाद यादव वाली जो आपने मिसाल दी है, यहाँ पर इस तरह का कोई मामला है नहीं। कोई बंदा बोला है आपके बीच में, किसी ने टोका है आपको? जब तक आपने सारे अपने बुखारत नहीं निकाल लिए, किसी ने आपको नहीं रोका, नहीं टोका, नहीं बुरा भला कहा, बावजूद इसके कि आप गैर इखलाकी गुफ्तगू कर रहे थे। और अपनी जो आपकी अक्ल है उसका आप इल्ज़ाम दूसरों को दे रहे थे कि बात तो आपको समझ आई बाद में। वो चिड़ियाघर में कोई गया ना बंदा देखने चिड़ियाघर, तो उसने देखा सारे जानवर हंस रहे हैं लेकिन गधा अपनी जगह पे खड़ा है, खामोश। खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना, चुप करके खड़ा है। वो दूसरे दिन फिर गया चिड़ियाघर, तो जाके देखा सारे जानवर खामोश हैं, गधा हंस रहा है। तो उसने कहा भाई कल मैं आया था तो सारे जानवर हंस रहे थे, आप खामोश थे, आज सारे खामोश हैं, आप हंस रहे। कहता कल वाली बात मुझे आज समझ आई है। तो मेरे मोहतरम, अगर आपको बात कल वाली आज समझ आई हो तो वो अपनी अक्ल का इल्ज़ाम दूसरों को तो ना दें कि दूसरों की अक्ल में बाद में बात आई तो वो जो जंग के बाद मुक्का याद आता है उसको मुंह पर मार लेना चाहिए, मैंने तुमसे ही सुना था। ये जितनी बातें आपने की हैं, इसमें सारा कसूर आपकी अपनी अक्ल का है। क्या आपका ये ख्याल है कि आप हमें मैसेज करेंगे, लो भाई आमर नज़ीर हमने ऑडियो डिलीट कर दी, मैं आपको $10,000 दे दूंगा, अगले हफ्ते फिर ऑडियो निकल आएगी, फिर मैं 10,000 दे दूंगा, फिर उससे अगले हफ्ते? यानी आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसा ही कोई मतलब फुद्दू सा मुसलमान आपने मुझे समझ रखा है कि मैं $10,000 दे के ऑडियो आपके पास छोड़ दूंगा। असल चीज़ है ऑडियो को ही तो ख़त्म करना है। आप यकीन दिला दें कि ऑडियो ख़त्म हो गई है या हो जाएगी तो $10,000 के आप हकदार हैं। लेकिन अगर आप यकीन नहीं दिला सकते तो उसकी, अगर आपको किसी ने बाद में जाके ये कह दिया है कि भाई ऑडियो आपके पास रहेगी, डिलीट करने के बावजूद आपने सेव की होगी, अगले महीने आप ब्लैकमेलर किसी शरीफ आदमी को फिर ब्लैकमेल करेंगे,
तो आमिर नज़ीर क्या करेगा, दूसरा कोई तीसरा क्या करेगा? अगर आपको किसी ने ये जाके दूसरे दिन कह दिया तो आपने ये समझ लिया ओ हो, ये तो वो जंग का मुक्का है जो बाद में याद आए। असल में ये जंग का मुक्का नहीं है जो बाद में याद आया, बल्कि ये वो चिड़िया घर वाली मिसाल है जो आपको बाद में समझ आई। अब आप करें बात, मैं सुनता हूँ। हाँ, एक छोटी सी रह गई बात, माजरत से 30 सेकंड और दे दें। रही बात ये कि आप यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं, अकेले में तो बात कर नहीं सकते। वो कहते हैं ना, मुझे याद है सब जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। शार्प शूटर की बराड पर अकेले ही थे ना, जब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट किया था दोनों बहन भाइयों का, तो वहाँ कौन था मेरे साथ? कोई भी नहीं था, अकेले ही थे। देख लें, उस दिन के बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब आप करें बात, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन इन एक्टिविटीज़ में हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, भी तो हम फ्री हैं और हम खुशी मना रहे हैं। हमें फ़ख्र है इस नौजवान पर, मोहब्बत है मुझे उन जवानों से सितारों पे जो डालते हैं कमंद, जो मुखालफ के मुंह में हाथ डालते हैं और आस्तीन का सांप बनकर अपने भाइयों के पाँव पे नहीं डसते, बल्कि जाके मुखालफ के हिक में बजते हैं ना। हमें उन नौजवानों से प्यार है, मोहब्बत है। तो ये सुहेब राजा को हम आज देखते हैं कि वो मुसलमान नौजवानों में बुलंदी की एक सीढ़ी चढ़ा है। अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, दीन और दुनिया की इज्जत दे। तो हम तो खुश हैं, तो हमने समझा चले आपसे रिलैक्स माहौल में बात कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल आपके साथ कोई हम एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। आपको ज़रूरी बात है तो कर लें। वो मैं कह रहा था नीचे खाम खा कमेंट ना करें। जो आपने बुखारात निकाल लें, जितनी मर्जी बुखारात निकालें, हम म्यूट कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर नज़ीर साहब। आमिर नज़ीर साहब, आप इखलाक की बात करते हैं, मुझे ये बताइए कि ख़वातीन के कपड़े उतारने वाला कौन अक्लमंद शख्स है? वो आप ही हैं कि अपने बहन बेटियों की, मुसलमानों की कपड़े आप उतारने की बात करते हैं और ये इल्ज़ाम हज़रत अली पे लगाते हैं। ये है आपका इखलाक, ये है आपका अदब और ये है आपकी गुफ्तगू। अपने मस्ती में अपने जमघटों को देखकर, मैं जमघटा कह रहा हूँ, छेला कह रहा हूँ, इसमें तो आपको अपने भाई बहुत बहुत परेशान हो जाते हो। ये कोई ऐसा कर लेगा, क्या तीर मार लेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये अपनी जो है वो चौधराहट जो आपके अंदर है, इस चादर को फेंक दो, कुछ नहीं कर पाएगा। इससे बढ़कर आपके चेले क्या कर पाएंगे जो 6 फिल्म आकर चलाते हैं, 6 फिल्म, और क्या कर पाएंगे? जो कुफर के फतवे देते हैं, जो मुसलमानों को हिंदू कहते हैं, और ये शोशा आपका है, आपने फेंका हुआ है। आप ये कहें मुसलमानों को कि तुम्हारी माओं ने तुम्हें ईदी के झूले से उठाया हुआ है, ये आपने एक शरीफाना और एक महज़बाना गुफ्तगू की है? नहीं, बल्कि ये आपने सिर्फ गैस खारिज किया है, गैस। सुबह शाम आमिर साहब आप क्या करते हैं, मुझे ये बताइए? सिर्फ गैस खारिज करते हैं। गैस खारिज के सिवा और आपका क्या है? लड़ाई बर्पा करना, फितना करना, उसके सिवा आपने क्या किया है, मुझे बताइए। आमिर साहब, ये आप देखें, आपने जो इतना बड़ा भड़क मारा कि $10,000 दे दूंगा, उस वक्त आपको तमाम बात कर लेनी चाहिए नहीं? जब आपको €500 देने थे तो आपने शातिम रसूल को अपना मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम वकील बनाया और उसके साथ घंटों बारे यहाँ बात की। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ गुफ्तगू नहीं हुई थी, हमने तो ये नहीं कहा था, इस तरह से तो नहीं हो सकता है। €500 की बात थी आमिर रज़ी साहब। आपसे एक चवन्नी भी नहीं निकलेगा, एक छवन्नी भी नहीं निकलेगा। आपसे अगर निकलेगा तो सिर्फ 2 भाइयों के दरमियान दराड़ और मुसलमानों पे कुफर के फतवे, ये निकलेंगे। ख़वातीन के कपड़े उतारना जो हम दे के आ रहे हैं मुहतरम, आपने जब ये कह दिया, वो बंदा कह रहा है और एकदम हल्कापन इख्तियार करके एक मदारी बनकर, मदारी कायद है, आप कायद हैं, लीडर हैं और कितने सालों से काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर दे। एक कायद मदारी बना हुआ है, मदारी पूरा 1.5 घंटा वहां जो है वो डुगडुगड़ी बजा रहा है। कोई भी मुसलमान आता है उसको बुला लेता है, आपकी वाइफ का नंबर है, आप हमें दे दीजिए। तेल डाल रहे थे, फितना कर रहे थे कि वहां वो ये बातें सुने और मजीद बढ़ के
मजीद बढ़ गए। आप कोई नेक काम नहीं कर रहे थे, आप कोई हकीकत पर अपने काम नहीं कर रहे थे। अगर आप वाकईतन आपकी नीयत साफ होती, सही होती, आप आकर क्या कहते कि भाई इस तरह की बात घूम रही है, हमें नहीं मालूम, अल्लाह आलम, और हकीकत अल्लाह जानता है। आप कौन है? आप गैबदान है क्या? ऐसा है या नहीं है? आप गैबदानी का दावा करते हैं, हमें नहीं मालूम, खबरदार कि तुम लोगों ने बात की, इसके बारे में बात नहीं करना। वो जाने, उनका काम जाने। बात सच सामने आएगी, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन आप गैबदान कब से बने हैं? और आपने मदारीपन किया, एक एक मुसलमान को, वहां पप्पू को जलील किया, एक शरीफ आदमी को, मसूद को जलील किया, क्योंकि वो हमारे साथ बैठता है। आपने ऐलान किया हुआ है ना कि इनके साथ ना बैठो। दीन आपका है, आप जागीरदार हैं, आप एक तन्हा मुसलमान हैं इस दुनिया में। यहाँ ना जाओ, उधर ना जाओ, इसको हम नहीं जानते, जिसको हम नहीं जानते वो मुसलमान नहीं है। ये कुफर का फतवा है आप दे रहे हैं। आपने जो कुफर का फतवा दिया, एक मुसलमान को इस्लाम से खारिज किया, शरअन जाकर पूछ लीजिए। ये टिकटॉक का दुनिया नहीं है, 2-4 आदमी आप देख रहे हैं। आपकी जो हरकतें हैं, कुफर को भी देखकर आप अपने पाँव के नीचे उसको रख लेते, कोई बात नहीं। बिदत को आप देख के उससे आप आंखें जो है वो चुरा लेते, कोई बात नहीं। मुशरिक हो, बिदती हो और दीन को रोंदने वाला हो, आप कहते हैं ये हमारा भाई है। लेकिन एक सच्चा अकीदा मुसलमान, उससे आप नफरत करते हैं। वजह? क्योंकि ताली नहीं बजा रहा, बंदर नहीं बना हुआ है, आपके ढोलकी पर नाचता नहीं है। आमिर रज़ी साहब, बातें बहुत हैं, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए मेरे मोहतरम भाई। जब आपने ये बात खुद की है, हमेशा की है, $500 के लिए क्या है, €500 के लिए क्या, €300 के लिए क्या है, और वो €600 या 500 लतीफ के झंडा लेकर जाना चाहते थे वहां पर। आप गए, आप सब झूठ हैं, आपके जितने भी वादे आपने किए हैं। आपने क्या, कौन सा तीर मारा? आपके भाइयों ने कौन सा तीर मारा? लतीफ जिंदा है, गए उसके घर पे, कुछ किया ना? शोशा। इसी तरह मलिक तलत और पप्पू का मामला बहुत हैं, लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। आप घबराना नहीं। आप कहते हैं गैस मैं आपके सही खारिज करूंगा, समझ रहे, सही खारिज करूंगा, कोई मसला नहीं। मेरे पास आपके गैस खारिज के लिए बहुत मवाद है, लेकिन एक एक पे बात करो। शायरी आप अच्छा कर लेते हैं, लेकिन आपको मालूम है कुरान शायरों के बारे में क्या कहता है, और शायरों के पीछे कौन लोग हैं ये भी आप जानते होंगे। लेकिन उससे क्या लेना देना, उससे क्या लेना देना? अपने शायरी से, अपने इससे गुमराह करो नौनिहाल बच्चों को, जो आकर हमारी बहन बेटियों को नंगी नंगी गालियां दें, हमारे बरोड़ों पे आकर 6 फिल्म चलाएं, हमारे बरोड़ों पे आकर हमें काफिर कहें और हमें खानदान को भी काफिर कहें। ये आपकी तालीम है, ये आपका गैस है। अब आप ही ने कहा है मेरे मोहतरम भाई कि मुक्का जब याद आए जंग के बाद अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। आप ही को याद आया है, कोई शर्त होती, कोई बात होती, सारा कुछ होता। आप समझदार आदमी हैं, कच्चे वो अकल नहीं है आपकी। आप एक चौधरी हैं, आप बड़े पंचायतों में बैठे हुए हैं, आपको नहीं मालूम कि किस तरह से बात कर लेनी चाहिए? आपने $10,000 का वादा किया, दे दे। एक करान भी नहीं निकलेगा आपसे आमिर भाई, ₹1, एक छवन्नी भी नहीं निकलेगा। $10,000 देने का आपने कहा, वो डिलीट करेंगे, हम $10,000 देंगे। आपको ये मैं खुद कह रहा था, ये किस तरह की बात कर रहा है? इसको कहना चाहिए पहले हमें वो सुनाइए, कोई गारंटेड कोई चीज, कोई बात नहीं कर रहा है। दुश्मन को तो वार चाहिए ना, आप तो हमें दुश्मन समझते हैं। आस्तीन का सांप आपने कहा है, और आपने भी ये कहा है कि ये पुद्दू मुसलमान हैं। ये तो सब आप जानते हैं। जब आस्तीन का सांप है वो कभी भी आपको डस सकता है ना, तो आपको कच्चे कोटियां नहीं खेलनी चाहिए। अब आपने बड़क मारा है, आप एक बड़े कायद हैं, आपको ये अमल कर देना चाहिए, वो $10,000 दे देने चाहिए। नहीं तो वो मुक्का आप अपने आप पे नहीं मारेंगे, शर्मिंदगी का मुक्का है वो, मेरे मुंह पे मार लीजिए। मैं इतना आपसे तलब कर रहा हूँ जी मोहतरम। इसके बाद एक और चीज आपके सामने रखेंगे, शलवारें आप खवातीन की अच्छी उतारते हैं जी। कर लें, और भी बुखारात खारिज कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि बंदे को इरिटेशन उतनी देर होती है जब तक बंदा देखता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं है।
जब रिजल्ट सामने आ जाए, आप जीत चुके हों, आप देख लें, जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला ने कहा ना, कद तबय्यना रुश्द मिनल गई, हदायत गुमराही से साफ अलग हो चुकी है। जब ये अलग हो जाए बंदा रिलैक्स हो जाता है। अल्लाह की कसम खा के कह रहा, मुझे आपकी इन बातों की बिल्कुल कहीं पर वो जिस तरह कहते हैं ना, जूं भी नहीं रेंग रही है, क्योंकि आपके इन जितनी ये जो आप बातें मार रहे थे, इनके जवाब वो लोग टेक्स्ट मैसेज में दे रहे थे। अगर आपके पास कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी दलील है, तो भाई मैंने इन लोगों को, जिस तरह मैं आपको नहीं जानता या आपको नहीं मिला, इसी तरह से ये जितना 100 बंदा नीचे बैठा हुआ है ना, इनको भी मैं नहीं मिला मेरे प्यारे भाई, मैं इनको भी नहीं मिला, मैं इनको भी नहीं जानता। लेकिन इन्होंने अपने एटीट्यूड से, अपने रवैये से, अपने किरदार से, अपने खलूस से, अपनी वफा से अपने आप को मुसलमानों का फर्द साबित किया है, मुस्लिम उम्मत का फर्द साबित किया है। अगर कोई बंदा मुसलमानों के कौज के खिलाफ, मुसलमानों की जमीयत के खिलाफ, मुसलमानों की वहदानियत के खिलाफ जाता है, वहदत के खिलाफ जाता है, वो अपना किरदार से वो अपनी शख्सियत खुद पेश कर रहे हैं ना, उसकी बात पॉपुलर नहीं हो रही, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, लोग उसकी बात को अच्छा नहीं समझ रहे, इसके लिए क्या फ़ायदा इन बातों का कि आप एक ही बात को दोहराते चले जाएं, $10,000 दे दो, या फैला दें बात, मशहूर कर दें, आमिर नज़ीर हमारा $10,000 खा गया, हमने झूठा साबित कर दिया है, देख लो $10,000 नहीं दे रहे। एक भी बंदा टिकटॉक पर मुसलमान ये नहीं कहेगा कि आमिर नज़ीर ने आपका $10,000, बच्चा कहेगा कि ब्लैक मेलरों के आगे जो ब्लैक मेल हो जाए उसकी बसीरत से डरने के लिए अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया था कि मोमन की बसीरत से डरो। मोमन है ही वो जो ब्लैक मेलरों को भी पहचानता है, आस्तीन के सांपों को भी पहचानता है। बाकी आप कहते वो मुसलमान भाई को ये कह दिया, मुसलमान बहन को ये कह दिया। भाई ऐसे मुसलमान जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, ऐसे मुसलमानों की मुसलमानी उनके लिए है, वो मुसलमान हैं कि नहीं हैं, हर बंदे का अकीदा उसके अपने लिए है, हमें उससे क्या लेना देना। हम जो मिर्जाइयों के यहाँ पर वो ऑपरेशन करते हैं ना, वो तो इसलिए करते हैं कि वो मुसलमानों के लिए, मुस्लिम उम्मत के लिए एक फितना बने हुए हैं, धोखा और दजल करते हैं। उस कादियानी कज़्ज़ाब ने ऐसा दजल फैलाया कि शेख बटालवी ने कहा था कादियानी एक फितना, कभी क़यामत होगा। ये शेख बटालवी के अल्फाज हैं। आसमानी मसीह और उसका रफ़ीक, ये आर्टिकल लिखा था शायद उसने, उसमें ये उन्होंने लिखा था कि कादियानी एक फितना, कभी क़यामत होगा, इस दजल की वजह से, इस हेरा फेरी की वजह से। वरना कादियानी का भी अकीदा उनके लिए जहन्नम जाएं। बंदे का अकीदा बंदे के अपने लिए होता है, हमें किसी के अकीदे से क्या लेना देना। बिदती है, कोई शराबी है, कोई कबाबी, हम अपने खुद अपने अमाल के जवाब दें। कुरान कहता है वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तो हमें कोई इन बातों से लेना देना नहीं है। आप अपनी एनर्जी जहाँ पर लगाना चाहते हैं, अगर मज़ीद लगाना चाहें लगाते रहें, अपनी इस्लाह करना चाहें तो इस्लाह कर लें, अभी वक्त है, अभी सांस आ जा रही है। आपका नैरेटिव ये अनपॉपुलर है, कोई मुसलमान आपको और आपके इस्लाम को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपका अकीदा तो आपके साथ है, आपका इस्लाम अहले इस्लाम के लिए होना चाहिए, आपकी सलामती अहले इस्लाम के लिए होना चाहिए, ना कि आप फितना बने हुए हैं तमाम मुसलमानों के लिए। अगर आप या मैं इवन अगर मैं मुसलमानों के लिए फितना बना हुआ हूँ तो मुसलमान मुझे पसंद नहीं करेंगे। अब देख लें, एक बात आप कर रहे हैं, एक मैं कर रहा हूँ, हम दोनों में से किसकी बात को मुसलमान पसंद कर रहे हैं, किसकी बात को नापसंद कर रहे हैं। आईने के आगे खड़े होके अपना चेहरा देख लें, आपको पता चल जाएगा। तो इसके ऊपर ज़्यादा बहस, वडाइश साहब बहुत बार बार कह रहे हैं बात करनी है, वडाइश साहब कर लें आप बात, आप कई मेरा ख्याल हफ्तों से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे मौका दीजिए वडाइश साहब, उसके बाद होगा। और मैं प्लीज साहब आप अगर आधा मिनट एक मुझे बात करने का मौका मुझे बात करने दीजिए, मैं इसके बाद नमाज के लिए चला जाऊंगा, आप बात करिए। नहीं, मैंने आपकी मौजूदगी में बात करनी है ना, आप आमिर साहब की गैर मौजूदगी में तो आपसे बहुत बात मैंने की है।
मेरे आपकी बात सुन लूंगा, मुझे बात करने जी दीजिए प्लीज। जी ठीक है, थैंक यू। आपसे अदब के साथ मैं कह रहा हूँ, आमिर नजीर साहब, दुनिया ये टिकटॉक नहीं है जो आपको जानती है, ये आपके शागिर्द हैं। ये दुनिया ये नहीं है, मुसलमान सिर्फ ये टिकटॉक में नहीं है। आप जरा होश में रहिए, मुसलमानों को कुफर के फतवे देना छोड़ दीजिए, और मुसलमान खवातीन जो आपकी बात नहीं मानते, जो आपके तर्ज अमल पर अमल नहीं करते, जो नक्शा और जो रास्ता आप देते हैं जुआ नहीं खेलते, जो शातिमों को अपने पास नहीं बिठाते, जो शातिमियत नहीं करवाते। आपको कहा गया कि ये तलत सबसे आला और अरफा और बेहतरीन इंसान, ये आपका तलत है, जिसने मुसलमानों के नौ मौलूद बच्चियों से लेकर आखिरी जो पैदा होगा सबको गालियां दी हैं। शातिमियत तो हमेशा करता रहता है। आपकी दोस्तियां इनसे थी। कितनी बार आपको कहा, मोहब्बत से कहा, ना कीजिए हजरत जी, ऐसा मत कीजिए, आप हमारे बड़े हैं, हजरत साहब ऐसा मत कीजिए। आखिर में मैंने ऊपर बैठना छोड़ दिया, आप मान नहीं रहे थे। आप कहते नहीं, आपने हर हाल में हमारी ही बात माननी है। अकेला आप ही रह गए अक्लमंद, आप ही चौधरी हैं खुद साख्ता, जिसको चाहेंगे बदनाम कर लेंगे। उस खातून ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खुद को मर्द कहते हो, मर्द हो, दाढ़ियां भी तुम्हारी है छोटी मोटी, और बैठ के जो है एक खातून के पीछे पड़े हो। नहीं वो बात नहीं कर सकती, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो पिलाना है, इसकी शादी इस तरह से हुई है, 3 जो है वो उसके ऐसे शौहर हैं जिन्होंने जो है वो शादी भी नहीं की, एक निकाह किया हुआ है, आसकानी उसका आशिक है, उससे शादी कर लेगा। शर्म नहीं आता आप लोगों को इस तरह की बातें करते हुए? एक भी चीज तुम लोग साबित नहीं कर सकते, एक भी। सारे झूठ हैं, सारे पलंदे हैं, सारा कुछ देखा हुआ है। आप क्या चाहते हैं? खवातीन और भी बरोड़ों पर मौजूद हैं, लेकिन वो खवातीन आपके मातहत हैं, आपकी बात मानती हैं। ये आपकी बात नहीं, आपको घास ही नहीं डालता। भाई आपको क्यों घास डाले कोई खातून? आपका क्यों जर खरीद गुलाम बनकर रहे? उसकी अपनी जिंदगी है। आगे बातें तो बहुत ज्यादा है। मैंने जिस तरह से आपको कहा, आपकी खयानतें, आपके झूठ, आपकी गालियां और आपके फितने मुसलमानों के बारे में, मेरे बारे में आपने वो रवैया इख्तियार किया कि लोगों ने काफिर कहना मुझे शुरू कर दिया, हिंदू कहना शुरू कर दिया। आपके चेलों ने, जो आपने पाले हुए हैं, आप पाले हुए हैं। सबसे पहला फतवा देने वाला कौन? एक कबर पुज्जा, एक कबर पुज्जा जो कबर को पूछता है, वो एक सलफी को काफिर कह रहा है। ये तेरा ईमान है? आ मैं तुझे सलफियों के सामने बिठाऊं, वो तुम्हें नक्शा दिखा दें। सलफी उलमा के सामने तुम्हें बिठाऊं, वो तुम्हें नक्शा दिखा दें। एक कबर पुज्जा, एक सही उल अकीदा इंसान को, जो जद्दी पुश्ती जो है अहले हदीस है, उसको काफिर कह रहा है। तेरे मौजूदगी में, तेरे मौजूदगी में तुझे डर है, अगर आप इनको कुछ कहोगे वो तेरी वो हाल कर देंगे जो रेड लाइन बना हुआ था ना, किसका, वो क्या नाम है, होली बोली शोली, रेड लाइन था इनका। क्या किया इनके साथ? तेरी उससे भी बदतर कर लेंगे, क्योंकि तू अहले हदीस है, लेकिन तू इनके दरमियान बैठा हुआ है, सांस को दबाया हुआ है। जो भी दीन के साथ करे, आपको कुछ नहीं करना, आपने गैस खारिज करना है। हम इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करते। दीन के साथ जहां भी ज्यादती हो, कोई पीर हो, कोई मलंग हो, जो कुछ भी हो, हम उसको मुंह पर कह देते हैं। आपको मालूम है इनके पीर जो है मुर्दों को भी जिंदा करता था। ये बातें सामने आ रही हैं कि हमारे पीर मुर्दे जिंदा करते थे। हमारा वो पीर है जिसने अपनी टोपी रख दी, क्रेन को लाया गया, उठा नहीं सका। यह अकीदा। हमारा वो पीर है, कलम को हुक्म दिया, कलम लिखने लगा। हमारा वो पीर है, चैलेंज किया, आओ हम मुर्दा, ये मुर्दा जिंदा करता हूं, तुम भी करो किसी भी कब्रिस्तान में। ये है अकीदा। खत्म नबूवत का आप काम कर रहे हैं। सहाबा को गाली देने वाले, सहाबा की शातमियत करने वाले, उम्महातुल मोमिनीन को गाली देने वाले, वो तुम्हारे भाई हैं। लेकिन पीर आसकानी जो अहले हदीस है, जद्दी पुश्ती, वो तेरे लिए क्या है? वो हिंदू है। तेरे लिए वो हिंदू है। वो बात आप ही ने शुरू की। जरा अपनी दरोबेनी कीजिए। और ये दुनिया सिर्फ ये टिकटॉक नहीं है। आ जाओ
किसी भी अहले हदीस के सामने आमिर रजी साहब आपने जो हरकतें की हैं कि मैं शलवार उतार दूंगा खवातीन की और मुसलमानों को पुद्दू मुसलमान, और दूसरी बात ईदी के जनाब आला वो झूले से उठाना, ये तमाम बातें एक अहले हदीस को, एक कायद को ज़ेब देता है। उसको अटैक करे जो देखे ये मुझे इस तरह की शतरत करने नहीं दे रहा। आपने गालियां देना शुरू कर दिया था आमिर रजी साहब, हमने आपको फोन किया था कि ये तलत के साथ गालियां देना शुरू मत कर दो, आपको ज़ेब नहीं देता। आप घबरा गए, ये क्यों मुझे मना कर रहा है। आपने तस्वीरें टांगी थी, मैंने कहा था आपको आमिर रजी साहब ये काम कबर पुज्जों के तेरे नहीं, आप ये तस्वीर मत रखिए, आपका ये काम ही नहीं है, बदनाम मत कीजिए अहले हदीसों को, ये मैंने आपको कहा था। लेकिन आपने शैतानों के मेरे पीछे लगा दिया, शैतानों को आपने लगाया, आप वो हैं। जरा याद कीजिए, वो तमाम बातें आपकी मौजूद हैं और यके बाद दीगर हम करते रहेंगे। इसी टिकटॉक में हैं, इसी टिकटॉक में मैं आपके पीछे रहूंगा क्योंकि आप मेरे भाई हैं। जरूर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी इस्लाह हो। ये गैस खारिज करना ये दीन नहीं है, सिर्फ गैस खारिज करो और फितना करो। आपने इस मसले में फितना किया, $10,000 का आपने जो है वहां पर वादा किया। आप जानते हैं अच्छी तरह से $1 आप नहीं देंगे। मैंने कहा था आपकी हैसियत नहीं है, हैसियत होगी लेकिन देंगे नहीं। ये सिर्फ एक फितना था, ये एक सिर्फ शोशा था। अपने आप को साबित कीजिए, वो पैसा दे दीजिए ताकि मालूम हो कि वाकईतन आप करते हैं। आमिर रजी साहब, आपको बाद में मुक्का अपना याद आया है, आप चौधरी हैं, बड़े हैं, मैं नहीं कहूँगा अपने मुंह पे मारिए, बल्कि मैं ये आपको मना करूँगा कि ख़वातीन की शलवार मत उतारिए, मेरा शलवार उतार दीजिए। जिस तरह आपने मुझे काफिर तो डिक्लेयर किया हुआ है, मेरा शलवार उतार के अपना मुक्का मेरे मुंह पर मारिए, और अगर आपका दिल नहीं भरता, शलवार आप उतारते हैं कुछ चीज देखने के लिए, अपना मुक्का जो है मेरे पिछवाड़े में भी डाल दीजिए, लेकिन खवातीन के साथ ये मत कीजिए। मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मुझे इतना ही आपसे कहना है, अगले नशस्त में कुछ और बातें होंगी, नाराज नहीं होना। आपकी इस्लाह जब तक नहीं होगी, सिर्फ गैस खारिज करने के लिए क्या है, हमारा अपने आप को मुसलमान कैसे, कौन सा आप आइए एक चीज मेरा साबित कीजिए कि ये मुसलमानों इस्लाम के शरई नुक्ते से यहाँ आपने एक गलत बात की है, आए साबित कीजिए। अगर मैंने वो किया, नाक रगड़ लूंगा, आपके कहने से नहीं, आपके बुहतान तराशियों से नहीं। आपके भाई आए और गलत चीज बयान करें, मैं डुडकी लेके उनके पीछे भागूं? आप आए, एक ही बंदा आमिर नजीर, एक, आप तो अहले हदीस थे, आपसे तो ज्यादा मुझे उम्मीद थी। एक ही शख्स, वाहिद शख्स, जिससे मुझे इतना मोहब्बत भी नहीं है, लेकिन अब इज्जत है। वो अब, पहले नहीं था, अब है, क्योंकि मैंने देखा, वाच किया, उसमें है कुछ बात। वो एक शख्स था मुफ्ती मुबश्शिर ने जब एक इबारत पेश की और उसमें वो बात नहीं थी, मैंने कहा मुफ्ती साहब इसमें ये इबारत साबित नहीं हो रही। उन्होंने हंस के जवाब दिया, अस्कानी भाई आप सही कह रहे हैं, मैं जरा तवाज़ो कर रहा था। लेकिन आप लोग ऐसे डीठ बने, हर इबारत जो नहीं है आप लोग उसी को कोशिश कर रहे थे कि इसको ऐसा कहो। मैंने कहा मरते दम तक नहीं कहूंगा, जो है वही कहूंगा। नहीं, इसको उर्दू नहीं आती, बाइकाट का ऐलान, सारा कुछ। आमिर रजीर, आपको चैलेंज है, मेरा चैलेंज है पीर आस्कानी का, जिसको तुम हिंदू कहते हो, जिसके बारे में तुम्हारा ये ख्याल है कि इसके माँ ने इसके ईदी के जो है वो झूले से उठाया है, वो पीर आस्कानी जो आपके फतवे के मुताबिक हिंदू है, उसका चैलेंज है तुम्हें आज से और क़यामत की सुबह तक। एक भी चीज पीर आस्कानी ने अपनी तरफ से कहा हो, शरीयत के खिलाफ हो, लाइए वो दलील पेश कीजिए। जो भी आप कहेंगे टिकटॉक छोड़ दूंगा, वरना आपको नहीं कहूंगा टिकटॉक छोड़ने के लिए, क्योंकि आपने अपना गैस खारिज करना होता है। आपको गैस हो जाएगा, मैं कहूँ टिकटॉक छोड़ दो, आप नहीं छोड़ो, रहो, गैस खारिज करो, लेकिन ये चैलेंज कबूल करो कम से कम एक, कि ये है, ये तुम्हारी आवाज है, खयानत मत कीजिए, काट कूट कर नहीं, ये तुम्हारी आवाज है, ये देखो शरई मसला है, आपने अपनी तरफ से बताया है, अपनी तरफ से आपने बताया है, बगैर किसी आलिम का फतवा या बगैर किसी हदीस से या बगैर किसी कुरान की आयत से इस्तदलाल आपने नहीं की।
اور کسی عالم کا قول یا کسی مفتی کا قول یا کسی محدث کا آپ نے پیش نہیں کیا، اپنی طرف سے کہا ہے، اور یہ یوں پلانے عالم کے قول سے، پلانے حدیث سے، پلانے آیت سے رد ہے۔ یہ آپ کو چیلنج ہے، آج سے ثابت کیجئے، ورنہ بہتان تراشیاں آپ کرتے رہیں، اس سے آپ صحیح ثابت نہیں ہوں گے۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سن کے اتر جاؤں گا، اب انشاءاللہ نماز کا اچھا پیر صاحب میری بات آپ نے سن کے جانا ہے نا پیر صاحب؟ اچھا پیر صاحب آپ کو پتہ ہے میں آپ کی براڈ پہ کافی زیادہ ٹائم میں نے گزارا ہے، اور عامر صاحب کی براڈ پہ تو خیر بہت ہی کم، میرا سب سے کم ٹائم اگر میں آتا ہوں تو عامر صاحب کی براڈ پہ، تو اس مرحلے جو فارمولا آپ نے انٹروڈیوس کروایا ہوا اس کے مطابق پھر میں آپ کا چیلا ہوں۔ تو آپ کا چیلا ہونے کے ناطے آپ کو معلوم ہے کئی دفعہ میری آپ سے جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں، جب بھی آپ ذکر کرتے ہیں عامر صاحب کا، وہ میں نے تو خیر آپ ہی سے سنی ہے یہ مختلف ٹرمنالوجیز جو چیلا اور ٹک ٹاک کے معبود ایٹسیٹرا، تو میں نے آپ سے ہمیشہ جھگڑا کیا اس بات کے اوپر کہ جو بھی کوئی دین اسلام کی بات کرتا ہے، ختم نبوت کا کام کرنے والے، وہ عامر صاحب ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کو اٹیک کر کے ڈی فیم کرنا، انڈرمائن کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور پیر صاحب یہ بات میں آپ کے سامنے ہمیشہ کرتا رہا ہوں، آپ جانتے ہیں میرا آپ کے ساتھ جو بھی تلخی ہوتی ہے انہی موضوعات کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ آئی ہیٹ کہ مسلمان اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی اختلافات کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو کاز ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ہم کمپرومائز کریں اور اس کو انڈرمائن کریں۔ چونکہ میں نے آپ کے ساتھ کافی ٹائم گزارا ہے اور آئی نو یور پین، آپ عامر صاحب کے متعلق آپ کافی شکوے شکایت ہیں آپ کے، اور میں نے جو نتیجہ نکالا ہے، نچوڑ نکالا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کے درمیان شاید اچھا وقت گزرا ہے، اب تلخی ہے، اور آپ ایک صلح جوئی چاہتے ہیں، اور جو میں نے امپریشنز لیے وہ یہی ہیں کہ عامر صاحب شاید ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ صلح جوئی کی خواہش رکھتے ہیں، اور میری یہ آبویسلی خواہش تھی کہ کوئی ہو، اور میں نے اپیل بھی کی ہے ایک دو دفعہ آپ کی براڈ پہ اوپر بھی جو لوگ تھے ان سے کہا تھا کہ جو پرانے لوگ جن کا دونوں شخصیات کے ساتھ اچھا تعلق ہے ان کے اوپر یہ فرض ہے اور لازم ہے کہ وہ اس جو چپکلش اور جو جھگڑا چل رہا ہے اس کو سیز فائر کروائیں دو مسلمانوں کے درمیان، اور خاص طور پہ جو دوز ہو آر ایبل ٹو میک بگ ڈفرینس، کہ آپ اسکالرز ہیں اور جینون اسکالرز ہیں، اور آپ کا جھگڑا جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ میرے جیسے عام لوگ ہوں، ہم لڑتے جھگڑتے پھریں، اٹ ڈزنٹ میٹر مچ، لیکن آپ لوگ لیڈ کرتے ہیں کمیونٹی کو واقع۔ تو پیر صاحب یہ بالکل یقین کر لیں، جو ایک عام مسلمان ہے میرے جیسا، اس کی دل آزاری کا باعث ہے یہ، جب آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اٹیک کرتے ہیں، انڈرمائن کرتے ہیں، اسلام کے کاز کو نقصان پہنچتا ہے، تو میری تو دل آزاری ہوتی ہے پیر صاحب، اور میں نے آپ کو کئی دفعہ درجن دفعہ آپ کے سامنے اظہار بھی کیا۔ اب آپ موجود ہیں یہاں پہ، مجھے یہ دیکھ کے کم از کم خوشی ہو رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ ایک پلیٹ فارم پہ دونوں شخصیات موجود ہیں، چاہے اچھے پیرائے میں نہ بھی صحیح، لیکن گفتگو کر رہے ہیں۔ میری عامر بھائی آپ سے بھی درخواست ہے، پیر صاحب کے دل میں آپ کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی محبت ضرور ہے، کیونکہ وہ آپ کا ذکر کرتے ہیں بہت زیادہ اپنی براڈ میں۔ تو جو بھی ڈیفرنسز ہیں میرے خیال میں اگر کم از کم اتنے ہو جائیں، ضروری نہیں کہ آپ ایک پینل کے اوپر روز بیٹھ کے گفتگو کریں، لیکن اتنا ہو جائے کہ کم از کم پیر اسکانی صاحب جو ہیں وہ اپنا کام کریں، آپ ویسے بھی اپنا کام کر ہی رہے ہیں، تو کوئی ایسا فارمولا، کوئی ایسی درمیان میں کوئی آپ کے مشترکہ جو بھی دوست احباب ہوں، میری ان سے بھی درخواست ہے کہ ان کے درمیان ایک صلح جوئی کا جو معاملہ ہے وہ پلیز کروائیں۔ تھینک یو۔ وہ چلے گئے۔ نہیں، پیر صاحب کو صلح جوئی کی بات پسند نہیں آتی سم ہاؤ، آئی ڈونٹ نو وائی۔ جی ہاں عامر بھائی ایک منٹ ذرا دے سکتے ہو، گل کرائیں ایک منٹ ذرا۔ اچھا ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਸਨ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੁਕਰਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਏ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਅੱਗੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਇਹ 100% ਲੀਡ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਆ ਬਰਾੜ ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਨੇ? जी ਚਲੋ अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ अच्छा अमर भाई ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਗੱਲ? जी जी मैं करनी अमर भाई जे अंता मिन्नी बमंजलती वलदी इसमें वलदी ऐ मेरे बेटे सुन अहले हदीस दा कीदा है जे कि अल्लाह इल्हाम करे ते कह दे इन्हां नूं कि हुण ईसा अलैहि सलाम तो भी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਹਦੀਸ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਨੇ ਤੇ ਮਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਮਲਕ ਤਲਤ ਦਾ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਹਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਈਫ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ।